So, welcome to Career and Process Institute. And today we are going to solve the Rashtriya Military School's Common Entrance Test, which held in 2017 का science part. We are going to solve the science section, and there are 50 questions in all, 1 to 50. We are going to solve. Okay, the first question is the soil matter formed by the decayed organic matter is called. Soil is formed of many layers, as we know. तो उसमें जो डेड और डिके मैटर से बनी होती है वो है टॉप मोस्ट लेयर, दैट इज ह्यूमस. Humus is made by the decayed material और वो that is rich in organic matter. So the first option is C, that is humus. Question number 2, which of the following cell has branches in their structure? So we know that neuron or nerve cell have a branch structure. इस टाइप का structure होता है. Nucleus in the center and dendrons, dendrites and axon, ये सब होते हैं इसके structure में. जिससे कि पूरे बॉडी में इनका नेटवर्क फैला होता है. तो these are having the branch structure. बाकी we all know that WBC does not have any fixed shape. Skin cells have a definite shape, but neurons have a branch structure so that they can carry the information throughout the body from brain to different parts of the body and from different parts of the body to the brain. So that's why they are having a branch structure which is spread throughout the body. Question number 3, which gas is filled in the electric bulb? Electric bulb में एक कोई भी inert gas fill होती है हमेशा, या तो inert gas या फिर ऐसी कोई गैस जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो. तो वो है out of the given option, it is nitrogen. Nitrogen क्या करती है? Nitrogen slows down the evaporation of tungsten filament. ये टंगस्टन फिलामेंट का evaporation को slow down कर देती है. तो either you fill inert gas या फिर ऐसी कोई गैस जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसमें होती है out of the given option, it is nitrogen. Question number 4, the strength of the force is generally expressed as. Strength कितना है force में? ये इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट है उस फोर्स का, उसको आप करते हैं मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस. क्वेश्चन नंबर 5, द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग. तो दे कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग द ब्रेल पैटर्न. ब्रेल में क्या होता है कि एम्बॉस्ड लेटर्स होते हैं which they can feel and they can make out what letter is written. So visually impaired people, they take the help of braille system to read and write. Next, question number 6, name the gas evolved when magnesium reacts with dilute hydrochloric acid. तो magnesium या सारी metals जब भी किसी acid से react करती है, magnesium का symbol होता है Mg. Whenever they react with any acid, तो which gas is given out? इसका salt बन जाएगा. मैग्नीशियम का क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनेगा and hydrogen is given out which burns with the pop sound. And plus magnesium is a very reactive metal. So any metal which is lying above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from the salt. तो इस केस में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट. The image, question number 7, the image formed by the plane mirror is always. तो plane mirror में आप देखते हैं कि plane mirror है, इसमें आप देखते हैं तो जो जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनती है. These are the, suppose यहाँ पर आप हैं plane mirror के आगे और these are the rays which are incident rays and these are the reflected rays. Since they are not meeting at any point, so we have to make them virtually meet at the back of the mirror. तो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है हमेशा और सेम साइज की और सीधी बनती है. सीधी इमेज को हमेशा हम बोलते हैं वर्चुअल. एंड डेली यू सी योर फेस इन द मिरर, इट इज इरेक्ट.
तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, which is the disease which is generally caused by smog? Smog is a pollutant, तो pollutant से जो भी smoke and fog के combination से बनता है ये, तो smog से जो भी disease होगी वो generally आपके lungs को, आपके respiratory system को affect करेगी। तो इसमें out of the given option asthma is given. Asthma is the disease which is generally caused because of smoke and fog, that is smog. Next, question number 9. Question number 9 है yeast is used in the production of. So as we know, yeast is a microbe. Yeast is a fungi which is used for the production of alcohol. ये sugar को alcohol में convert कर देता है. So yeast is used in the production of alcohol. Question number 10, the name the gas present in the fire extinguisher. So oxygen has the capacity of burning, but carbon dioxide has the capacity to extinguishing. वो चीज़ों को बुझाने में मदद करती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? उसमें ऐसे कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस प्रेजेंट होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल इज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें जो है नर्व सेल इज ब्रांच स्प्रेड थ्रूआउट द बॉडी। मसल सेल का भी अच्छा खासा शेप होता है, स्पिंडल शेप, एंड दे आर आल्सो बिग साइज। और इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन, प्लेटलेट सेल which help in the clotting of the blood are the smallest animal cells. Question number 12, identify the statement about the tissue from the following. टिश्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 12, a tissue is a group of similar cells performing different function. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू is the group of similar cells performing same function. Next, B, a tissue is a group of similar cells performing the same function. तो ये आ गया हमारा सही ऑप्शन। This option number 12 is correct. तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू is the group of similar cell performing similar function। और एक लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक यूनिट इज सेल, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म organ, and organ combine to form organ system. Question number 13, in humans the development of embryo takes place. तो embryo का मतलब जब मेल और फीमेल गेमीट का फर्टिलाइजेशन से जो बनता है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, और वहाँ पे वो 3 दिन रहता है। बट जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होता है यूट्रस में। यूट्रस में ही होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी द एग इज प्रोड्यूस्ड। तो एग इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। ओवरी आर the structures present in the female body which help in the production of eggs. Question number 15, which of the following is one of the female hormone responsible for the breast development? So during puberty this hormone is very activated. The name of the hormone is estrogen. बाकी testosterone is more active in males, thyroxine is the growth hormone, adrenaline is the hormone which is secreted in emergency situations. Next, question number 16, which of the following is not an insulator? Insulator होता है कि जो which does not allow conductive electric current to flow through it. जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होती वो होता है इंसुलेटर। तो इसमें से क्या इंसुलेटर नहीं है? वो है ब्रिक इज एन इंसुलेटर। इसमें से जो इंसुलेटर नहीं है वो है स्टील। स्टील इज एन एलॉय एंड वी ऑल नो मेटल्स
और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So steel is not an insulator. Question number 17. Which of the following can exert force on another without a contact? तो ये यहाँ पर बात हो रही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जो कि दूर से भी एक्ट करते हैं. तो होता है मैग्नेट. मैग्नेट के लिए आपको दो चीज, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने के लिए आपको दो चीजों का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है. तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर. तो जो भी हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट टेम्परेचर होता है जिसपे कि वो फायर कैच करता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, जिसपे वो फायर कैच करता है. बाकी कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, एक्सप्लोजन इज द सडन बर्निंग इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. तो ignition temperature is called the temperature at which a substance starts burning. एक substance जिस temperature पे burning start करता है उसको हम बोलते हैं ignition temperature. Next, question number 19. The force of acting per unit area of the surface is called. It is called the pressure. Pressure क्या होता है? Pressure होता है force upon area. तो per unit area पर जितना force काम कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Pressure. Question number 20. A frequency of 1 hertz is equal to how many oscillations per second? Number of oscillations per second is called frequency, है ना. frequency क्या होती है? number of oscillation per second. और तो 1 hertz क्या होगा? number of oscillation per second. It is equal to 1 hertz is equal to 1 oscillation per second, because frequency ही है, इसकी यूनिट है hertz, और इसका मतलब होता है number of oscillations per second. So frequency is measured in hertz and it is the number of oscillations per second. Question number 20. The species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. एक ऐसी स्पीशी जो कि एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशी. एंडेमिक स्पीशी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोकल स्पीशी जो मतलब एक ही एरिया में मिल रही है ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following combinations are present in the plant cell but not in the animal cell? कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है? तो वी ऑल नो कि प्लांट सेल में होता है सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. बाकी सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 विच इज सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स विच दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल? तो ह्यूमन बॉडी में टोटल होते हैं 46 स्पर्म्स, उसमें से 23 मेल से आते हैं, 23 फीमेल से होते हैं. तो स्पर्म इज द मेल गैमीट. स्पर्म में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच इसके बॉडी पार्ट्स आर विजिबल is called. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद बनता है जाइगोट. जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है, उसके बाद बनता है एम्ब्रायो. जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है काफ़ी और 6-7 महीने बाद जो बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं पीटस. पीटस में जो डेवलपिंग एम्ब्रायो का हाथ पैर दिखना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स विजिबल होने लगते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस. क्वेश्चन नंबर 25. डायबिटीज. डायबिटीज होती है जिसमें कि आपका ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. डायबिटीज होती है किस वजह से? डायबिटीज होती है बिकॉज कि आपकी बॉडी का एक हार्मोन ठीक से नहीं काम कर रहा होता, वो होता है इंसुलिन. वैसे तो डायबिटीज के कई टाइप है और कई रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक मेन रीजन है वो है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है वो ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा होता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन.
Question number 26. Which of the following are called the basic unit of life? So we all know cell is called the basic unit of life. Cell क्या होती है? Basic unit of life है. तो 26 का option है C. Cell is called the basic unit of light. Next, question number 27. A sun produces heat and light through. तो sun के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है. तो सन की एनर्जी का रीज़न क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस है. बाकी क्योंकि है ना, क्योंकि इनके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस की ज़रूरत होती है सन न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, और ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं कंडक्ट की जा सकती. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर द रीज़न ऑफ हाई हीट एंड लाइट थ्रू सन. क्वेश्चन नंबर 28. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई इन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है कि वो होता है ऐसा कुछ जो कि मोशन को अपोज करेगा. तो फ्रिक्शन हाई किस में होगा? वो होगा हमेशा रफ सरफेस. रफ सरफेस क्योंकि वो मोशन को अपोज करती है, क्योंकि इरेगुलरिटीज होती हैं रफ सरफेस में, जिसमें कि आपका जो मूविंग बॉडी है उसकी इरेगुलरिटीज के साथ मैच करके वो बॉडी मूव करना बंद कर देती है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज हाई इन अ रफ सरफेस. 28 का ऑप्शन है बी. 29. Which fiber is used in the artificial wool? तो artificial wool, nylon is synthetic fiber. Polyester is also a synthetic fiber. Acrylic is called the artificial wool. मतलब it is prepared in the laboratory और इसका wool की तरह से यूज होता है. तो 29 का ऑप्शन है बी. 30. Question number 30. Which is the outermost layer of the animal cell? We all know कि animal cell में outermost layer क्या होती है? वो होती है plasma membrane या cell membrane भी होते हैं. उसमें कोई भी cell wall present नहीं होती. Cell wall is not the option. तो correct option is B, cell membrane or plasma membrane. Question number 31. The entire content of a living cell is known as. उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग सेल का एंटायर कंटेंट, और ये बनता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से. न्यूक्लियो प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. और ये दिस कंटेन द एंटायर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. Question number 32. The deposition of the desired metal on other metal by means of electricity is called as electroplating. electroplating में क्या होता है कि जो भी desired आपकी metal होती है उसकी लेयर आप चढ़ाते हैं दूसरी metal के ऊपर. ये हो सकता है ornamental purpose से, या कभी कभी आपको जैसे रस्टिंग वगैरह से प्रोटेक्ट करना होता है, तब भी आप एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे कि आयरन इज अ रिएक्टिव मेटल और उसमें अक्सर रस्टिंग हो जाती है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. तो दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following device is used to check whether the object is carrying any charge or not? The device which is used to know whether the object is carrying any charge or not is electroscope. बाकी electrocardiogram is not the device. ये क्या होता है? ये आपकी हार्ट की बीट को मेजर करने के लिए होता है. Microscope is not the option because it is used to see small object. Telescope is not the option, usually used for seeing celestial bodies. Option is whether a substance is carrying any charge or not. उसके लिए आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. तो 33 का ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 34. In which of the following state Question number 34. In which of the following state the Jim Corbett
national park is located? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में, और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है एंड काफ़ी पॉपुलर भी है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स जो डिजीज है, तो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस बहुत सारे होते हैं। चिकन पॉक्स होता है वो होता है वायरल, इट इज अ वायरल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय वायरस। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following option is said to be celestial object? Celestial object मतलब जो which are found in the celestial object, जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स है, सारे हैं celestial objects। तो celestial objects means all of these। ओरियन, ओरियन इज कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि एक पर्टिकुलर शेप में रहता है। ओरियन क्या है? कॉन्स्टलेशन है जो कि विच इज फॉर्म्ड बाय सेवरल स्टार्स। तो ओरियन इज अ कॉन्स्टलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो सपोज ये हमारा पेंडुलम है, ये है इसकी मेन पोजीशन, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट डिसाइड्स द लाउडनेस ऑफ एनी बॉडी। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position. The maximum displacement from the mean position is known as amplitude. Next, question number 39. The property of the metal by which it can be drawn into wires, इस property को हम बोलते हैं ductility. Ductility है जिससे कि metal के wire बनाए जा सकते हैं, this property is called ductility. Question number 40. The baking soda is the common name for, baking soda out of the given option is sodium hydrogen carbonate. इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. NaHCO3 is the baking soda. Next, question number 41. Name the acid formed when sulfur dioxide reacts with water. तो sulfur dioxide जब water से react करती है तो हमें बनता है sulfurous acid. उसका फॉर्मूला है H2SO3. जब ये वाटर से रिएक्ट करेगी तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, फॉर्मूला इज H2SO3. क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जब आप रिफाइनिंग करते हैं तो आपको पेट्रोल भी मिलता है, पैराफिन वैक्स भी मिलता है, डीजल मिलता है। कोक इज द ऑप्शन, ये आपको पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? कोक इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो इट इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 42 का ऑप्शन है सी, कोक। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एल्गे। एल्गे है तो माइक्रोब्स कई कैटेगरी के होते हैं, एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस। एल्गे इज स्पाइरोगायरा विच इज अ ग्रीन एल्गे जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बाकी अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, पैरामीशियम इज आल्सो अ प्रोटोजोआ विच इज नॉट एल्गे, स्पाइरोगायरा इज द एल्गे। क्वेश्चन नंबर 44, the conversion of milk into curd is done by lactobacillus which is a bacteria. Question number 45, identify the antibiotic from the following. तो erythromycin, streptomycin, tetracycline ये सारे क्या हैं? एंटीबायोटिक है। 45 का ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following element is used for vulcanization of rubber? तो नेचुरल रबर जो होता है वो इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, उसके अंदर, और वो एक इलास्टोमर है, वेरियस लेयर्स का बना होता है। तो लेयर्स के बीच में आपको स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो क्या करते हैं, उसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जैसे सल्फर की इंटरलिंकिंग हो जाती है और इससे जो रबर है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो इसमें क्या है, वल्कनाइजेशन के लिए कौन सी एलिमेंट का यूज होता है? दैट इज सल्फर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है इसमें से?
सिंथेटिक फाइबर मतलब दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो कॉटन, सिल्क और जूट आपको पता है कि ये नेचुरली ग्रो होते हैं। पॉलिएस्टर विच इज द पॉलीमर ऑफ एस्टर्स, पॉलीमर है और इसको हम लैब में बनाते हैं। तो पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर विच इज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। बाकी कॉटन है, कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड्स, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म, जूट के भी फील्ड्स में होते हैं। तो बाकी सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, इसमें जो पॉलिएस्टर है वो है सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which of the following one is called the thermosetting polymer? thermosetting polymers वो होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि एक बार अगर आप उनको मोल्ड कर दो तो आप वापस हीटिंग से भी उनका शेप नहीं चेंज होता। तो मेलामाइन और बेकेलाइट ये दोनों ही हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, मतलब एक बार जो उनको आपने मोल्ड कर दिया तो फिर उनका शेप नहीं चेंज होता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is the largest and multi-purpose protected area? So out of the given option, biosphere reserve, biosphere reserve ये एक बहुत ही लार्जेस्ट एंड मल्टीपर्पज, मतलब इसमें आप एनिमल्स को नेचुरल कंडीशन में रख सकते हैं फॉर देयर ब्रीडिंग, फॉर देयर डेवलपमेंट। तो दे कैन सर्वाइव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट और उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन कंबशन? कंबशन में कौन सी गैस यूज होती है? तो कंबशन मीन्स बर्निंग, बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करती है? वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। कंबशन में हेल्प करने वाली गैस है ऑक्सीजन। और तो कंबशन के लिए हमेशा तीन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको चाहिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस, आपको चाहिए फ्यूल और आपको चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। तीन चीज़ें अगर आपको मिल गई तो कंबशन पॉसिबल होगा। तो 50 का ऑप्शन है ऑप्शन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग और कंबशन। तो दीज वर द 50 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 50। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।